Okay. So, first of all, the Commission is grateful to the state of Himachal Pradesh for hosting us here. This is our first state consultation, so we have had a very good start this morning. We had about 2.5 to 3 hours of very intense exchanges. We also had an excellent speech by the Chief Minister, followed by a very, very extensive presentation, a very thick one, as you can see here, about 90 slides by the Principal Secretary of Finance. So we covered a lot of territory, which going beyond even the Finance Commission mandate, but we discussed the finances in particular of Himachal Pradesh, what its financial needs are going to be over the 5-year period. Now, this Finance Commission, what the recommendations of this Finance Commission will apply to years 26-27 to 30-31. That's a 5-year period. So we discussed about the needs of the state, what the expectations of this state of Himachal Pradesh are from the Commission. One of the things that repeatedly came was the fact that the terrain of Himachal Pradesh, like those of some of the other village states, being a difficult one, the cost of provision of almost everything, not just roads and airports and the like, meaning infrastructure, but even building schools, building medical colleges tend to be many times more than in the states which are largely in the plains. So that was one factor that repeatedly came. We discussed about also the role of the Finance Commission on disaster relief, set of issues, how the particular index used by the 15th Finance Commission did not completely capture the needs of Himachal Pradesh, and so we discussed that. Some issues on local bodies. So that was roughly the overall tenor of the discussion. Our job, we saw our job as that of listeners. So we listened to, and we have agreed that if further questions arise on either side, we'll get back to each other. So that was the summary of what occurred this morning. Any queries from the media, one by one, please? सर हिंदी चलेगा सर? चलिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। Can you hand over the mic? सर मैं राजेश मल्होत्रा हूँ, यहाँ डेली न्यूज़पेपर है दिव्य हिमाचल वहाँ से। पहले तो सर ये कि एक छोटा सा प्रदेश आपने चुनाव शुरुआत करने के लिए विजिट का, और ये सिलेक्शन हिमाचल का किस तरह से हुआ, अगर थोड़ा सा आप ये ब्रीफ कर पाए। और सेकंड ये कि हिमाचल की जो नीड्स हैं उसमें अगला फाइनेंशियल ईयर जब आप शुरू करोगे 26-27 वाला, तो हमारा आरडीजी ऑलरेडी 7,000 करोड़ के आसपास चला जाएगा, जो गैप है हम बजट की एस्टिमेशन अभी तक की जो देख रहे हैं। तो ऑलरेडी आरडीजी टेपरिंग हो गया था 15 फाइनेंस कमीशन में। इधर जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है उनमें थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, एक इशू उसमें ओबीएस भी है। बहुत सारे स्टेट्स में भी आप और भी जाएंगे, राजस्थान छत्तीसगढ़ भी आपको मिलेगा जहाँ ओल्ड पेंशन भी एड्रेस करना पड़ेगा। यहाँ हिमाचल को इस वक्त आप किस तरह प्लेस्ड देख रहे हैं फाइनेंशियल? तो आपके दोनों सवालों का जवाब जो है ना सेक्रेटरी साहब देंगे। सिलेक्शन कैसे हुआ? सिलेक्शन देखिए ऐसा है कि सारे स्टेट जाना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर है, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि जैसे बारिश शुरू हो जाएगी हिमाचल में तो विजिट करना मुश्किल होता है। तो एक हमारे लिए एक चैलेंज था कि इसके पहले कि यहाँ पर बारिश हो और मतलब सरकार जो है वो उनका फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए, हम लोग सोचे कि यहाँ पहले विजिट कर लेंगे। दैट इज में
अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मतलब किसी स्टेट पहले जाना ही है। तो और दूसरा, जहां तक जो कमिटेड एक्सपेंडिचर और आरडीजी है उसके ऊपर तो अनुशंसा बनेगी। अभी तो ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो भी एक वित्त आयोग जो अनुशंसा देता है, ऐसा नहीं है कि पिछले वित्त आयोग से उसका कोई लिंकेज है। मतलब इसमें उसके कोई भी वित्त आयोग पिछले वित्त आयोग ने कैसे उसको असेसमेंट किया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, उसको देखेगा। बट ऐसा नहीं है कि उनसे हम बंधे हुए हैं। 16वां वित्त आयोग 15वें से बंधा हुआ है, या 15वां 14वें से बंधा हुआ था, या 17वां 16वें से बंधा होगा, ऐसा नहीं है। तो उसका बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट विश्लेषण होगा और उस आधार पर आयोग जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अनुशंसा करेगा। The second point was the OPS and the these 1500 schemes, welfare schemes, were initiated by the state government over pensions. You want a mic, Saurabh? Saurabh, please speak on the mic. I You think want a we mic. got point. What is the view of the finance commission? अभी तो देखिए, अभी तो ये कंसल्टेशन का दौर है, तो अभी का ऐसा कोई व्यू नहीं है इसमें कि क्या होना चाहिए। बट ये एक मुद्दा रहेगा, एक गलत मुद्दा रहेगा, क्योंकि इसका क्या स्टेट पे फाइनेंसिस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये जरूर कमीशन इस पर ध्यान दे सकेगा। And second, it is a politically question. The state, this Himachal state is a Congress-run state, and the center, in the center, there is a BJP led. So, do you think you will be able to address this conflict, because the state government repeatedly saying we are not getting the share due to the political differences? So let me answer you, man. Okay, Finance Commission traditionally low profile, neutral body रहा है, professional body रहा है। तो हम जो है उसको उसी दृष्टि से देखने की उम्मीद रखते हैं। ये एक लंबा ट्रेडिशन है। 1952 में पहला कमीशन आया था, उसके बाद 15 और आ चुके हैं। तो हमेशा से प्रोफेशनली वर्क किया है फाइनेंस कमीशन ने, एंड वो ट्रेडिशन बना रहेगा। Himachal Pradesh is also very low profile state. People are Yeah, next, Saurabh, please. Anybody else? मैं दैनिक जागरण से प्रकाश भारद्वाज हूँ। मेरा दोबारा से प्रश्न है कि जो आरजेडी की बात हो रही है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की, क्या अभी जो 15वें वित्त आयोग ने हमें दिया था, क्या 16वां वित्त आयोग हमें वहाँ पर रखेगा या नहीं? क्योंकि स्टेट की फाइनेंसिस की हालत सही नहीं है और हम लोग स्टेट जो है वो सेंटर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो क्या इसको मद्देनजर रखा जाएगा? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर सचिव महोदय ने दिया था। नहीं, वो स्पष्ट नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि 15वें पे हम लोगों को रखा जाएगा या कम होगा, ये जैसे पुराने वित्त आयोग रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए हर वित्त आयोग का अपना अलग अलग मापदंड रहा है। अगर आप पिछले 4 वित्त आयोग को देखेंगे तो हर ने अलग अलग मापदंड लगाया था। किसी भी स्टेट के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो उसपे जो असेसमेंट होता है और रेवेन्यू उनकी जो रिसोर्सेज होती हैं उसके असेसमेंट में अलग अलग मापदंड लगाया है और एक नॉर्मेटिव अप्रोच लगाया है। करीब करीब सारे वित्त आयोग ने जो पिछले 5-7 वित्त आयोग बने हैं, और इस संदर्भ में 13वें वित्त आयोग ने एक अप्रोच लिया था, 14वें ने उससे भिन्न अप्रोच लिया। आरडीजी के मामले में जिसकी बात आप कर रहे हैं, 15वें वित्त आयोग ने 14वें से अलग अप्रोच लिया और उन्होंने एक टेपरिंग मुद्दा उठाया कि ये पहले साल में सबसे ज्यादा अधिक मिलेगा, उससे धीरे धीरे कम होते होते वो जो आखिरी साल है उसमें कम हो जाएगा। तो ये एक अलग अप्रोच था। 14वें ने करीब करीब फ्लैट रखा था, सारे 5 सालों के लिए उन्होंने फ्लैट रखा था। अब जैसा सचिव महोदय ने कहा और अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये पहला राज्य है जहां हम आए हैं, यहाँ की बात सुन रहे हैं, इनकी जो विशेष समस्याएं हैं उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। सबका आंकलन किया जाएगा। अभी तो हम जाएंगे जब वहां पे पूरे देश का एक मापदंड तैयार होगा, सारे राज्य 28 राज्य से हमें इनपुट मिलेंगे,
और उसके बाद जो आयोग फैसला करेगा या जो दृष्टिकोण अपनाएगा उसके बारे में तो अभी एक तरह से कहें तो प्रीमेच्योर है कुछ कहना कि भाई हम ये मापदंड लगाएंगे, ये मापदंड नहीं लगाएंगे, ये कहना तो अभी उचित नहीं होगा। उसके लिए हम तैयार भी नहीं है, उसके लिए हमारे आकलन के लिए जो डेटा होना चाहिए वो भी नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आगे जो 5 साल में हमारे रिसोर्सेज क्या आएंगे, किस तरह का टैक्सेशन आएगा, केंद्र की टैक्सेशन किस तरह से चलेगी, उसका भी एक असेसमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आखिरकार जो पैसा बढ़ता है तो उसी राजस्व से बढ़ता है। तो ये सबका आंकलन में समय लगता है। वित्त आयोग को अक्टूबर 2025 तक समय दिया गया है, उसके पहले सारे राज्यों का दौरा कर लेगा और जो भी उसके बाद उसका परिणाम निकलेगा वो आपको जरूर प्रस्तुत करेंगे। Hemant. Yes, Hemant. My name is Hemant. I represent ANI. I have 2 questions. Can HP get green bonus for protecting huge green forest in Western Himalayas? And second question is, you referred to the natural disaster. As we know, the climate change and natural disaster is hitting Himachal Pradesh very hard, and state government is forced to divert its budget and funds to restoration and normalizing the life. Can Finance Commission make some special provisions to fund these unforeseen natural losses? So look, this is all within the purview of the Finance Commission, but both the questions you have asked relates to what will be the approach of the Finance Commission. That member Mr. Jha has already stated that it is too early in the tenure of the 16th Finance Commission to say anything. Now remember that this is a very big task. The overall task of the Finance Commission is a very big one, which is for 5 years to make recommendations on how, first of all, the total tax revenues of the central government will be divided between the central government and the states, and then how the share of the states taken together will be divided among the states. Okay, so that is the overall mandate, and within which also there are issues of disaster risk management and local bodies. Now this is a major big exercise, and no answer can be really given to a single question about what the Commission will do, because all of this is going to be a part of a much larger, bigger exercise to come to the answers to the questions I've just laid out before you. But it is what you have asked is most definitely within the purview of the Finance Commission. There was one last question. I think anybody wants to speak. Sir, my name is Shiva Bharadwaj and I am from Samvad Bharat, original web portal of Himachal Pradesh. सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह पूरे देश में फ्री लीज का कल्चर शुरू हो गया है, कुछ राज्यों ने ओपीएस भी लागू कर दी है या ओपीएस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्या लगता है आपको आने वाले समय में देश की इकोनॉमी के लिए क्या ये भी एक तरह का थ्रेट हो सकता है? ये भी एक इशू है जो फाइनेंस कमीशन एड्रेस करना चाहेगा किसी न किसी फॉर्म में, पर अभी भी जो स्थिति है, it is too early in the game. So we are aware of the fact that that the what you call it freebies have proliferated, and there is a competition among states and among different political parties, and that's something which does relate to finances. So in this sense, the finance it is a part of it is within the purview of the Finance Commission, but anything beyond that, the Commission cannot say that. सर एक बात नमस्कार, मैं सुरेश अंगिली हूँ सर, अमर उजाला न्यूज़पेपर से। एक बात आपका जो प्रारंभिक जो आपका संबोधन था उसमें आपने कहा कि सरकार की ओर से कोई ऐसी बात रखी गई कि 15वां जो वित्त आयोग था उसने ठीक से एड्रेस नहीं किया प्रदेश के इश्यूज को।
ऐसे क्या इश्यूज सरकार ने रखे सर, और क्या नहीं नहीं, वो तो एक स्पेसिफिक बात थी, वो जो डिजास्टर रिलीफ इंडेक्स जो 15 फाइनेंस कमीशन ने यूज किया था, उसके विषय में जो है हिमाचल प्रदेश ने कहा कि इसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं, वो उस DRI इंडेक्स में अच्छी तरह से कैप्चर नहीं होते। इसी का ऐसा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि जो ये 16 फाइनेंस कमीशन जो है, क्योंकि अभी वैसे क्वेश्चन तो कर दिया था वहाँ से, जो आपदा आई हिमाचल प्रदेश पर, इसको कुछ प्रारंभिक आपने कोई खाका बनाया होगा, कैसे एड्रेस होगा आने वाले टाइम में जो बजट हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, किस तरह से दिया जा सकता है? हिमाचल प्रदेश का शेयर जो है वो आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। 28 स्टेट्स हैं देश में और सेंट्रल गवर्नमेंट है, सो इन सबका एक साथ देखा जाएगा। Sir, last question है रजनीश कुमार टीवी पर। Yeah, it's a last question, please. Others want to take it. सर, कनेक्टिविटी हिमाचल का एक बहुत बड़ा इशू है और पिछले फाइनेंस कमीशन ने 1000 करोड़ रुपए मंडी में ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिया था। तो कनेक्टिविटी के इशू को देखते हुए क्या 16 फाइनेंस कमीशन इस इशू को एड्रेस करेगा? क्योंकि केंद्र सरकार ने फाइनेंस कमीशन की सिफारिश तो थी 1000 करोड़ की, लेकिन वो केंद्र से अलॉट नहीं हुआ था ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी के लिए। जो स्पेसिफिक इशू है वो टू एड्रेस फॉर द फाइनेंस कमीशन। We will look at all issues of all states and the central government. Thank you, sir. क्या था? Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you so much. Once again, we welcome you here, sir. And